आई थिंक एक चीज जो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इन द लास्ट 3 years ऑल दीज सर्विसेज कंपनीज इनको भी रियलाइज हुआ है कि they have to basically go at a newer pools of talent. So last 3 साल में all these larger MNC companies who have their tech teams in India, उनका बहुत बड़ा सरदर्दी रहा है. So while we have all been aware of what is happening in the startup ecosystem where salaries have gone very high, and those salaries are largely paid by VC dollars, so founders really don't care as long as they are raising the next round of funding. Every established companies, they have really felt the pain, right? And my wife is in HR, so I keep hearing that every every second day somebody is putting his papers, and putting paper in large MNCs is more about renegotiation of salaries, right? So there is 30%, 50%, 70% negotiation happening, and this has been the trend in the tech industry and financial industry for a while, but in the last 2-3 years that had become very rampant, right? So everyone was literally having a alternate offer and was negotiating for a higher salary. So I think that is one of the reasons why these larger MNCs and IT companies have decided to go on various talent pools, right? So therefore they are approaching all kind of mechanisms to keep their talent pool and talent available for them, right? So that's one thing. The other part, Anand, is that while there is a big slowdown, apparent slowdown, sentiment slowdown in US and now also in India, and you have been a big promoter of that for the last. ये मधुकर ये बोलता रहता है कि सारा स्लोडाउन जो है वो मेरी ट्वीट्स की वजह से हुआ है. But on the contrary, Anand, today I have just come from the mall. I had to go to the mall and for some shopping purposes, right? It's crazy, right? So where is this slowdown? I don't understand. The malls are completely filled. The car showrooms are completely filled. There is wait of 3 to 4 months for car purchase, right? So there is wait for practically everything, right? So you try to go into a restaurant. ये बड़ा अजीब है जो प्रतीक ने बोल रहा था ना कि काफी सारी जो रिट्रेंचमेंट हो रही है वो केवल नॉन टेक रोल्स में हो रही है, टेक रोल्स में काफी कम है. हैविंग सेड दैट देयर आर सम कंपनीज हु विल लेट गो ऑफ सम टेक रोल्स आल्सो, बट एट द सेम टाइम हमारी जो नई स्टार्टअप है, जैसे आज सुबह मेरा एक कैचअप कॉल था एक फाउंडर से, तो वो अभी भी उसने मतलब दिखाया है कि 4 में से 3 लोगों ने ज्वाइन किया, एक ने ज्वाइन नहीं किया. मैंने बोला क्या हुआ? बोले इसके कहीं और मिल गया. तो ये अभी भी चल रहा है कि लोगों के पास मल्टीपल ऑफर हैं और ज्वाइन नहीं कर रहे हैं. तो ये नहीं है कि ज्वाइनिंग रेशियो कोई मतलब 90% हो गया है ना. लोग अभी भी 50% ज्वाइनिंग रेशियो पे ही है. नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑन वन हैंड स्लो डाउन चल रहा है, दूसरी तरफ ये है कि टैलेंट अभी भी ज्वाइन नहीं कर रहा है. लार्जर कंपनीज में there are still people putting down their papers asking for 50% kind of hike. Malls are still full, there are waits for restaurant, cars, hospitals, hotels, right? You try to book a hotel today if you land in say Mumbai, Delhi or Hyderabad, and right today you will not get any hotel, right? So you will have to actually go and stay in a OYO or a. लेकिन फिर भी मधुकर क्वेश्चन है कि भाई आज अगर किसी को टेक करियर मतलब सिलेक्ट करना है कि भैया मैं स्टार्टअप टेक्नोलॉजी में जा रहा हूँ, है ना, और काफ़ी लोग जो मसाई में आते हैं वो लोग इवन अदरवाइज ना काफ़ी लोगों को एक कॉल लेना पड़ता है कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, इसको छोड़ के स्टार्टअप पे घुसता हूँ, या मैं MBA छोड़ के स्टार्टअप पे घुसता हूँ. तो ये प्रतीक अच्छा ये बताओ यार कि मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है कि डू यू रिकमेंड कि पीपल शुड गो फॉर एन MBA? इज दैट अ बेटर करियर और या स्टार्टअप tech career is a better career in terms of let's say growth, earning, etc. अर्निंग तो नहीं है स्टार्टअप करियर में, लेकिन हाँ आई थिंक फ्रॉम अ लर्निंग पर्सपेक्टिव इफ इट कम्स टू MBA वर्सेस स्टार्टअप, तो एनी डे स्टार्टअप इज 1000 टाइम्स बेटर ऑप्शन. मतलब मैंने खुद ने बहुत सारे अपने बैचमेट्स को कन्विंस करा है स्टार्टअप आइदर ज्वाइन करने के लिए या फिर स्टार्टअप चालू करने के लिए. देयर आर मेनी दैट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड आल्सो, जूनियर्स या फिर बैचमेट्स. तो स्टार्टअप में लर्निंग इज इमेंस. दैट इज समथिंग व्हिच हम लोगों को सबको पता है.
बट अच्छा यार, ये प्रतीक एक बात बताओ, तो मसाई की अर्लीस्ट बैच कितनी, 1.5 साल पुरानी हो गई? earliest batch is First batch. 1.5 years. How are these people doing in their jobs? So 1.5 the साल से first जो लोग batch, कर रहे हैं काम, हाँ, first batch had 12 people, और उसमें से 7 जनों का ISA भी कंप्लीट हो गया है. हाँ, अच्छा, और ऑलरेडी। हाँ, और 12 में से 6 लोग ऑलरेडी SD2 बन चुके हैं. 6 HD2 बन चुके हैं। हाँ. तो इनका एवरेज पे क्या होगा HD2 पे? डिपेंड करता है डिफरेंट कंपनी. अब एक हमारी कंपनी है जो रेंज क्या होगा? हाँ, तुम्हारी कंपनी तो तुम्हारे दोस्तों वाली कंपनी को छोड़ दो, पर रेंज क्या होगा? range is anywhere between 18 to 25. Wow. So these people are 1.5 years old in their job, but earning 18 to 25 lakhs. Correct. और ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बैच वाले लोग हैं, ये लोग, इन लोगों को कोई जॉब का कट का कोई प्रॉब्लम नहीं आया किसी को भी? इन लोगों को जॉब कट तो हम लोग यहाँ पे वैसे भी इन जनरल हुआ नहीं है. मतलब इवन फर्स्ट वेव के अंदर भी हम लोगों ने ज्यादा नहीं देखा था. सेकंड वेव में भी नहीं, ज्यादा नहीं. अच्छा नहीं, तुम्हारे जो मसाई के बच्चे काम कर रहे हैं जिन कंपनियों में, वहां पे इम्पैक्ट नहीं है? वहाँ पे सच इम्पैक्ट नहीं है. यस. तो वहाँ पे दो तरीके की कंपनीज में लोग हैं. कुछ बड़े स्टार्टअप्स में भी हैं और कुछ सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी हैं. तो दोनों का इम्पैक्ट नहीं है एज सच. ओके. और जो तुम्हारे बड़े रिक्रूटर थे पिछले साल के, वो लोग थोड़े ठंडे पड़े हैं क्या अभी? बड़े वाले रिक्रूटर जो थे सारे ठंडे हो गए? अच्छा. तो प्रतीक यार, ये एक बात बताओ, जो मैंने ना सवाल पिछली बार भी, मतलब आई थिंक, सॉरी, मैं ट्विटर पे मैंने क्वेश्चन किया था कि लोग जब डिसाइड करते हैं ना स्टार्टअप करियर बनाने का, तो पीपल जॉइन अ कंपनी विच हैज बीन रेजिंग अ लॉट ऑफ मनी, कि जो कंपनी ना बार बार पैसा रेज कर रही है और यूनिकॉर्न है, इतना पैसा रेज किया, अखबार में नाम आ रहा है, तो बच्चे सारे उसी कंपनी में घुस जाते हैं. सबको लगता है कि यही बेस्ट कंपनी है, बहुत पैसा रेज कर रही है. और मैं बोल रहा हूँ ये तो उल्टा होना चाहिए, कि जो कंपनी हर 6 महीने में पैसा रेज करके सर्वाइव कर रही है, उसमें तो बिल्कुल भी आप टिक नहीं पाओगे, because they need money every 6 months. So if somebody wants a good quality company, they should be looking at a more stable company which doesn't raise a lot of money, isn't it? पर ये कोई यंग स्टार्टअप वाला कैसे डिसाइड करेगा? वो यंग करियर आप शुरू कर रहे हो. हाँ, सो वो जस्ट डेटा है नहीं, कोई डेटा नहीं है, कुछ पब्लिकली अवेलेबल नहीं है. तो आई थिंक केवल एक ही वैलिडेशन एग्जिस्ट करता है, वो है कि जो फंड रेज कर रहा है वो कम से कम बिजनेस अच्छा कर रहा होगा. एंड दैट्स व्हाई पीपल आर गोइंग आफ्टर. दे आर नॉट लुकिंग एट बिजनेस. तो प्रतीक, मुझे समझ में नहीं आता है, मधुकर को समझ में नहीं आता है कि बिजनेस अच्छा है कि नहीं. हम तो वीसी लोग हैं. एग्जैक्टली, मैं भी वही बोलने वाला था कि यू आर एक्सपेक्टिंग अ 22 years or 23 year kid to be a better VC than us, right? कि वो no, I can't expect. मैं यही बोल रहा हूँ. तो अगर किसी को एडवाइस करो ना, कोई अगर पूछता है कि भैया क्या करें, अब तो मेरे को तो अंकल ही बोलते हैं मोस्टली, तो अंकल कौन सी स्टार्टअप में जॉब लें, तो यही हो गया कि ये तो VC वाला डिसीजन हो गया है ना. करेक्ट. और इसके चक्कर में क्या होता है कि जो लोग हैं वो सिर्फ जो हाईएस्ट सैलरी दे रहा है और जिसका अखबार में ज्यादा नाम है ना, और उसमें ज्वाइन कर लेते हैं. तो इसमें क्या, मतलब कोई रास्ता निकाला है तुमने? सो आनंद, वही है, इसलिए अब हम लोग ना बोलना बंद कर चुके हैं स्टार्टअप, क्योंकि हम लोगों ने ना थोड़ा ज्यादा स्टार्टअप कर दिया था. तो उसके कारण क्या हुआ था कि हमारे बच्चे जो है वो सर्विस बेस्ड कंपनीज को थोड़ा सा इग्नोर करने लग गए थे. उनको लगा था कि ये कोई करियर ऑप्शन तो है ना, हमें तो फास्ट मूविंग कल्चर के अंदर होना है और वो सब चीजें होनी. अच्छा. वो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा चैलेंज था. बट देन सबके प्रोज एंड कॉन्स है. सो पीपल दोस हु आर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी और ग्रोथ भी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि सर्विस बेस्ड कंपनीज में काफी स्टेबल सिस्टम होता है और ग्रोथ के चांसेस नहीं होते. मतलब जो बड़ी सर्विस बेस्ड कंपनीज है वहाँ पे भी ग्रोथ के काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है. सो और वो लोगों ने खुद से इस डायरेक्शन में काफी काम करा है. और ये आपको लास्ट 3-4 साल में देखने को मिलेगा कि अगर आप कोई बड़ी कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी है, सो दे आर कमिंग ओवर हियर एक्टिवली डूइंग प्री प्लेसमेंट टॉक एंड स्पीकिंग अबाउट द करियर ट्रेजेक्टरी, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा हाई है और उसको कंट्रोल करने के लिए दे हैव वर्कड अ लॉट ऑन इट. तो लोग ये पिच करते हैं कि कैसे एक स्टार्टअप कल्चर क्रिएट हुआ है यहाँ पे अंदर. और ये चीज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वरना अदरवाइज एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं हो पाएगा. तो कंपनीज हैव आल्सो स्टार्टेड वर्किंग. हम लोग तो स्टैंड लेते ही नहीं है, हम लोगों के लिए तो दोनों चीजें अच्छी है.
प्रतीक तुम्हारे लिए तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जो स्टार्टअप का ग्लैमर है विच वाज बेसिकली पुशिंग योर मोस्ट ऑफ द आउटकम फनल टुवर्ड्स स्टार्टअप्स, राइट, एंड देयरफॉर वाज क्रिएटिंग एक तरह का थोड़ा सा एनॉमली क्रिएट कर रहा था। तुम्हारे लिए अच्छा है कि लोग थोड़ा सा डरेंगे कि हाँ मतलब सारी तरह की कंपनीज को देखना चाहिए, ना सिर्फ कि जो सबसे ज्यादा सैलरी दे रहा है और सबसे ज्यादा नाम है बस उसको नहीं देखना चाहिए। करेक्ट। हाँ, और शायद ना मतलब when people get some experience and Masai has a big network, right? It is important कि भैया आप अंदर 4-5 लोग जो काम कर रहे हैं उनसे पूछ के जाओ कि भाई एक्चुअली कुछ काम हो रहा है या हमको खाली बैठ करके एक बटन को ऑप्टिमाइज करा रहे हैं। करेक्ट। तो हम लोग कंप्लेन जो मैंने हम लोग हर कंपनी जब भी आती है हमारे पास में, अगर रिपीटेड कंपनी होती है तो उस कंपनी के आने से पहले उधर जो एलुमनाई काम कर रहा है वो आता है और वो क्लोज डोर सेशन करता है बच्चों के साथ कि क्या चल रहा है वहाँ पे। बढ़िया काम। अच्छा, तो मोटा मोटी हर जगह एलुमनाई पहुंच गए तुम्हारे? मतलब हमारे एलुमनाई काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट 500 कंपनीज में। अरे वाह, ऑसम। तो इसलिए मतलब सही है। पता है एक दूसरा कल्चर जो था ना टेक्नोलॉजी में कि जो बच्चे हैं वो हर 1 साल 1.5 साल में जॉब जंप मारते थे, बिकॉज योर एग्जिस्टिंग कंपनी विल गिव यू 10, 20, 30% इंक्रीमेंट, बट somebody outside might give you 100% इंक्रीमेंट। करेक्ट। तो देन वो एक नॉर्म बन गया कि हर साल जॉब चेंज करने कर रहे हैं। करेक्ट। उसके बारे में मतलब व्हाट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट एज पर यू ऑन द करियर? तो करियर वाइज तो आनंद, until unless company is not, मतलब कंपनी इज शोइंग द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी टू एनीवन, तो फिर तो स्विच करने का पॉइंट नहीं होता है। और हम लोग ये चीज बच्चों को भी इंकरेज करते हैं। बट ये थोड़ा सा कल्चर ना आपको हमारे वाले कॉलेज वाले लोगों का ज्यादा देखने को मिलेगा। आईआईटी का ज्यादा दिखता है अदर देन जो हमारे टियर 2, टियर 3, टियर 4 कॉलेज वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पे ये कल्चर कम देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे पीयर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एक की सैलरी जंप हो रही होती है तो दूसरा भी स्विच करके सैलरी जंप करने की तरफ जाता है। वो पीयर प्रेशर में पूरा गेम चल रहा होता है। तो जैसे अगर आप मसाई के बच्चों को देखेंगे तो मतलब हमारा ऑलमोस्ट 90% जनता अभी भी 1 साल के बाद भी जॉब के सेम ही जॉब के अंदर है। तो वो चीज कंपनीज के लिए काफी फायदेमंद होती है, क्योंकि अगर क्योंकि स्टार्टिंग के 3-4 महीने वो लोग ट्रेनिंग पे तब भी स्पेंड करेंगे और फिर प्रोडक्टिव होते होते, बिल्कुल रियल टाइम प्रोडक्टिव होते होते उसको 1 साल तो लगेगा। तो अगर बच्चा स्विच कर रहा है तो फिर neither it is useful for the company, neither it is useful from the student's career perspective। हमारे केस में तो हम लोग यही इंकरेज करते हैं कि जितना लंबा अगर ग्रोथ हो रही है कंपनी की तो स्टे देयर। सो यार ये तो, लेकिन सॉरी मधुकर, या सो प्रतीक वहां पे क्या है ना कि एक तो ये एस्पिरेशन तो होता ही है, स्पेशली व्हेन यू आर यंग, दैट पीयर प्रेशर ऑफ पीपल मूविंग कंपनीज इज देयर, राइट? बट आई आल्सो थिंक दैट ऑन अ as an industry, the way it is structured, the transparency is also not there, right? So ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता है कि किसकी क्या सैलरी है, राइट? सब हवा में ही बात कर रहे होते हैं कि हाँ वो इसमें काम कर रहा है और वो इसमें काम कर रहा है तो इतना तो सैलरी होगा ही, राइट? नाउ दैट इज द जनरल kind of a assumption which people make, right? And when you actually go inside and you realize कि अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, right? तो वो एक चीज है। और दूसरा चीज है कि उसी एस्पेक्ट में जो मतलब whether it's notice period, whether the way you conduct yourself when you are basically आप एक कंपनी को छोड़ रहे हो या ज्वाइन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, राइट? वो सारा जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में नहीं रहा है, राइट? और जब कोई कंपनी अपने लिए कर रही होती है तो उसको फर्क नहीं पड़ता, बोलता है यार ठीक है मैं तो हायर कर रहा हूँ, मेरा तो बंदा आ रहा है ना, वो क्या करके आ रहा है पिछली कंपनी में, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, राइट? बट जब खुद के साथ होता है तो फिर ट्विटर पे रोते हैं लोग, राइट? सो आई थिंक देयर शुड बी सम अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी व्हिच शुड बी क्रिएटेड। I think back in 2017-18 when we were in IIM Jobs, we were investors in IIM Jobs, Tarun used to do some surveys of salaries etc, right? मगर वो सब अब दिखता नहीं है, मतलब जो इंडस्ट्री लेवल पे जो एफर्ट मारना चाहिए ऑन द टैलेंट साइड वो दिख नहीं रहा है, स्पेशली व्हेन द टैलेंट प्रॉब्लम इज बिकमिंग मोर एंड मोर acute. I was expecting कि people will come up and basically
organize and do stuff which will organize the industry. मधुकर, you are saying कि इंडस्ट्री का एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, वो तो मुश्किल ही है. वो मुश्किल नहीं है. कोड ऑफ कंडक्ट तू वीसी में तो बनवा नहीं पाया मधुकर. नहीं, कैपिटल देखो, कैपिटल, वी आर कैपिटलिस्ट, राइट? सो अल्टीमेटली एवरीथिंग शुड बी डिसाइडेड ऑन कैपिटल. आई एम नॉट सेइंग कि अब यूनियन बना दो कि इतना ही सैलरी होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, बट आई एम सेइंग कि सम बेसिक बेंचमार्क्स, राइट? सो वेयर देयर इज सम आइडिया दैट व्हाट पीपल आर doing, right? So that both the sides don't get carried away, right? So कंपनी कुछ भी पैसा देने को तैयार है, उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअली मार्केट में किस प्राइस पे लोग मिल रहे हैं, राइट? और सामने वाला ऐसी हवा में नंबर फेंके जा रहा है, वो बोल रहा है कि यार मेरे को तो फलाने ने बोला है कि उसने बोला है कि 1 करोड़ रुपया उसका सैलरी है, तो मैं कम में काम क्यों करूं, राइट? सो देन इट बेसिकली काइंड ऑफ becomes very tricky situation, right? And then on top of that, Anand, when things like 2022 happened, right? Just think of a guy who was somehow able to push through and probably get a 70-80% hike in the salary, right? And now if that company basically chucks him out, उसको निकाल देते हैं, तो वही वाला कहानी हो जाएगा ना कि आपने $2 million 35 million के आप वैल्यूएशन उसको डाउन लेना पड़ेगा. वैल्यूएशन अब डाउन करेगा कौन, राइट? प्रॉब्लम तो ये भी है ना, जब इतने सारे कंपनीज हैं जो फ्लैट राउंड करने के लिए तैयार है, तो डाउन वाली कंपनी में कोई क्यों जाएगा, राइट? सो आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? बट मधुकर, ये ना दिस इज मतलब देयर इज नो साइंटिफिक मेथड कि आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि ये सैलरी स्लैब में आना चाहिए. उसके कारण क्या हो रहा है कि आपको एक तरफ दिख रहा है कि लोग जो है वो जंप कर रहे हैं, बट दूसरी तरफ कंपनीज एडवांटेज भी बहुत ज्यादा ले रही है. जैसे अभी आप स्पेक्ट्रम देखोगे अपने पोर्टफोलियो में, देयर आर कंपनीज जो हायरिंग एट 4 lakhs per annum who has a similar kind of requirement, and there are companies जो हायरिंग एट 25 lakhs per annum. तो दोनों का स्पेक्ट्रम बिल्कुल अलग है और बाकी सब चीजें भी अलग है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट सेम है. तो कंपनीज एडवांटेज भी बहुत ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, और उस जगह पे फिर थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है फ्रॉम अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव या फिर फ्रॉम एन एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव कि हम लोग वहां पे एक सैलरी स्लैब होनी चाहिए या फिर एक साइंटिफिक मेथड होना चाहिए. तो ये तो दोनों जगह पे काम होना पड़ेगा. मतलब I think that's what I was saying, right? This is more prevalent in the new age technology companies, right? I don't think this is a big problem in Infosys, TCS, or for example even financial institutions like Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, right? They have kind of a structure कि यार तुम्हारा ये एक्सपीरियंस है, तुमने ये काम किया है, तुम्हारा ये सैलरी हो रहा है. तो वहां पे कोई इतना बड़ा मिसमैच नहीं होता कि गोल्डमैन सैक्स उसको बोल रहा है कि तुम्हारी सैलरी में 35 लाख रुपए दूंगा और सामने वाला बोल रहा है नहीं मेरे को तो 1 करोड़ रुपया चाहिए, राइट? वो वाला गैप, तो उसको हम कैसे ब्रिज करने के लिए, यू गाइस आर सपोज्ड टू बी लीडर्स इन दिस टैलेंट ecosystem, right? So are you guys also thinking about it, because these all are part of the same puzzle, right? नहीं, वही है मधुकर, वो सबको कलेक्टिवली हम लोगों को काम करना पड़ेगा टुवर्ड्स साइंटिफिकली डिराइविंग द स्लैब्स स्ट्रक्चर एंड उसको नॉर्म बनाना पड़ेगा. जैसे वो धीरे धीरे ही होगा, वो इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, बट उस डायरेक्शन में सब लोग काम तो कर रहे हैं. कुछ आर यू थिंकिंग ऑफ अ गुड क्वालिटी सैलरी सर्वे? हम लोगों ने करा, बहुत बार करा है. अच्छा. लेकिन वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम्स पे काम कर रहा है कि मतलब देयर इज नो सैंटिटी इन द सर्वे. यार पब्लिश करो फिर भी कुछ तो. हाँ, वो पब्लिश करना चाहिए हम लोग, बट काफी ज्यादा डिफरेंस है अभी एट दिस मोमेंट. तो एक को बताओ आनंद, बस एक क्वेश्चन है इस डायरेक्शन में कि अगर कोई किसी को 70% या 80% हाइक मिलती है, मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन है, तो शॉर्ट टर्म थिंकिंग के बेसिस पे उसको जाना चाहिए वहां पे. एंड 2022 तो रिसेशन है जो आया है, बट उसने नहीं सोचा होगा कि रिसेशन आने वाला है. तो शॉर्ट टर्म थिंकिंग पे उसे जाना चाहिए, फिर उस जगह पे उसे मैच्योरली थिंक करना चाहिए, मतलब फ्रॉम अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव. यार what the way I think, Pratik, right? You should accomplish something in the current job if you don't have any problem. You should move when you have a problem कि you're not able to accomplish anything. But if you are in a place where you feel that I will be able to complete this task, I will be able to complete this project, my company is reaching a milestone, right? Those are accomplishments which are very important for your own confidence, learning, full cycle learning. It's not about कि आपने एक कोड बनाया और वो कोड चल गया. It is about you finishing the project and product and product succeeding, right?
that whole confidence of completing a full cycle. But of course, sometimes you might have to jump because you feel that you completed a few things, you learned a few things, but you're not growing. Of course, there are situations where some companies are not able to give a growth path. But otherwise, jumping like just because of financial consideration, it was very easy for people to do that because people were on working on remote basis and they didn't really think of a long-term career. But जो हम लोग बोल रहे हैं अभी कि आज मतलब the talent crunch of senior level tech professionals is very high. Correct. And senior is defined by what people have achieved in technology. It is not about how many years of experience you have. Correct. So I think people will have to collect achievements, not just paycheck and salary increments. So I would optimize for that. Got it.